राइट। तो हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मेसी प्रैक्टिस एक्टिविटी क्लासिफिकेशन. As a pharmacist increasingly focus their practices on the provision of pharmaceutical care, means how we care through our drugs to the patient, and exert to be compensated by a pharmaceutical care services, means the different services we are providing to a patient through our pharmacy, how we take care of that. The need for a consistent, broadly accepted classification of pharmacy practice activities become evident. नजर आनी चाहिए जो काम कर रहे हैं. Although many systems exist to record pharmacist activity, until now the profession has lacked a widely accepted way to describe or document these activities in common language. Before this era, there was not uh, there was no such activities which can be identified or recognized by the institution or the observer. The pharmacy practice activity classification PPAC intended initiated by the American Pharmaceutical Association APHA provides a common language that if used consistently will yield comparable data among studies. ठीक है, एक लैंग्वेज के अंदर आपने तमाम एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन को लेना है ताकि आगे जो है कोई डाटा मेंटेन कर सके एक ही लैंग्वेज. दिस इन टर्न कैन कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग डाटाबेस फॉर स्टैटिकली साउंड डिटर्मिनेशन अबाउट द फार्मासिस्ट पेशेंट सेंटर्ड एक्टिविटी. मीन्स पेशेंट के दरमियान में फार्मासिस्ट की एक्टिविटी क्या है और दिस इज इन बिटवीन द पेशेंट एंड फार्मासिस्ट एंड वेदर दे इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, यानी how much efforts the pharmacist has put on to get a better outcome result of the improvement of patient, and the use of the resources and how he is using the different resources available in the pharmacy. Such systems are already used by other health professions, for example, medicine, nursing, and improvement. Purpose of the PPAC is to provide a solid foundation to support system for remuneration that can be used for billing. Means this system can help out to increase the profitability of the hospital as well as provide better facilities and services to the patient. The PPAC is focused primarily on activities of the license. Means every pharmacist must have a license, every pharmacy must have a license. Practicing pharmacists across the continuum of the healthcare settings, means pharmacists should be trained accordingly with the time and work in a better health setting. The classification captures a range of activities from traditional dispensing, which was a traditional duty of the pharmacist, to direct patient care services. Now, pharmacist is responsible in the direct patient care services. It is recognized that pharmacists occupy other roles. और कौन से रोल्स हैं फार्मासिस्ट के इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. एडमिनिस्ट्रेशन में फार्मासिस्ट है, रेगुलेटरी एजेंसीज में ड्रैब में फार्मासिस्ट है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस आपकी बनी है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटीज बनी हुई है, पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं, एकेडमिया में मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पास फार्मासिस्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पेशेंट, डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली. अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप आगे जाके आपके दूसरे टीचर आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो आप आगे जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे. अगर हम टीचरों ने अगर हमने खुद आपको वो मटेरियल नहीं दिया जो मटेरियल इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, तो आप कैसे अपनी कैरियर में एनहांस करेंगे. So this is the duty of the teachers also. The benefit of the consensus on a uniform classification system includes advantage the recognition of the pharmaceutical care as a key component of pharmacy practice, leading to an understanding of the value of a need for the compensation for the delivery of pharmaceutical care services. ठीक है ना, इस तरीके से हम फार्मास्यूटिकल केयर सर्विसेज को हम डिलीवर कर सकते हैं. यहाँ मैं थोड़ा सा शेयरिंग को रोक रहा हूँ ताकि यहाँ पे स्लाइड को थोड़ा ठीक कर लूँ.
राइट। तो फार्मेसी प्रैक्टिस एक्टिविटी क्लासिफिकेशन में हम लेते हैं ensuring appropriate therapy and outcome। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हम थेरेपी सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ट्रीटमेंट हम सही दे रहे हैं। बिकॉज यूर अ फार्मासिस्ट, यू हैव टू कीप आई ऑन योर ड्रग्स, मेडिसिन। आर यू प्रोवाइडिंग द राइट मेडिसिन टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम इन द राइट डोजेज फॉर्म? Then under that comes ensuring appropriate pharmacotherapy. Appropriate pharmacotherapy, are you providing them? Ensuring patient understanding and adherence to his or her treatment plan। जैसा आपने प्लान बना के दिया उसको वैसे ही वो कर रहा है कि इसको 1 हफ्ते तक दवाई लेनी है, तो 4 दिन के बाद वो वापस आता है कि मैंने तो खत्म कर दिया कोर्स पूरा। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग आउटकम, व्हाट इज द रिजल्ट? डिस्पेंसिंग मेडिकेशन एंड डिवाइसेस। एस्थमा के लिए अगर नेबुलाइजर दे रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। डिस्पेंसिंग मेडिसिन क्या है, डिवाइसेस क्या प्रोवाइड की गई है। प्रोसेसिंग द प्रिस्क्रिप्शन और द मेडिसिन ऑर्डर्स। ऑर्डर जब आपको मिला है मेडिसिन बनाने का, तो आपने उसको कैसे बनाया प्रिस्क्रिप्शन पे। प्रिपेयरिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपने बल्क में बनाई है हॉस्पिटल में या मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली। डिलीवरिंग द मेडिकेशन और डिवाइसेस, उसको पेशेंट को कैसे पहुंचाया आपने। हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, आपने कोई सेमिनार अरेंज किए कम्युनिटी के अंदर, हेल्थ प्रमोशन के लोगों को जाके बताया कि दवाई कैसे खाते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप इसमें करेंगे। सर्वेलेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ द पब्लिक हेल्थ इश्यूज। प्रमोशन सेफ मेडिकेशन यूज इन सोसाइटी। हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट, मैनेजिंग द प्रैक्टिसेस, मैनेजिंग मेडिकेशन थ्रू आउट द हेल्थ सिस्टम, मैनेजिंग द यूज ऑफ द मेडिकेशन विद इन द हेल्थ सिस्टम। पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च एक्टिविटी, आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। एंगेजिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, अपने जो डिपार्टमेंट से आपकी कैसी कोलैबोरेशन है ये भी देखेंगे आप। लेवल ऑफ प्रैक्टिस एंड डिसीजन मेकिंग। फार्मेसी प्रैक्टिस टेक्स प्लेस एट डिफरेंट लेवल। अब फैसले जो हो रहे हैं बहुत जगह। एक आपका मेन फार्मेसी है, आगा खान को ले लें, अभी मेन फार्मेसी है, वहाँ से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है ना। उन ब्रांचेस को जो है वो आप क्या कहते हैं, उन ब्रांचेस, तो उसके नीचे जो फार्मेसी, सेटेलाइट फार्मेसी 17 होती है, तो इसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, फैसले कहाँ किए जा रहे हैं। आगा खान में 17 फार्मेसीज हैं, लियाकत में 22 satellite pharmacies हैं। The ultimate aim of the activities at all these levels is to the patients by improving and maintaining their health। हमारा main target क्या है, patient को improvement में। Activities as individual patient level comprises all aspects of providing and managing a patient drug therapy, pharmaceutical care, including clinical pharmacy services। At this level, decisions are made on issues of the pharmaceutical care and triage, that is a prioritization of the care, patient follow-up, and therapeutic outcome monitoring. Some of the activities at the level of supply management in community and hospital pharmacies, such as manufacture, compounding, procurement, and distribution of the medicines, are seen as routine or back office activities and are not discussed in this handbook। अब इस किताब में इसको डिस्कस नहीं किया, जो बैक हैंड पे बहुत सारी आप लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं स्मॉल स्केल फार्मेसी हॉस्पिटल में, सच एज मैन्युफैक्चरिंग है, बल्क मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, कुछ टिंचर्स बनाते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बनाते हैं, कुछ बाम्स बनाते हैं, कुछ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स बनाते हैं। जो प्रोक्योरमेंट, आपने रॉ मटेरियल कैसे खरीदना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन of the medicine, distribution of medicines are seen as a routine or a back office activities, such as are not discussed in lecture. However, these activities remains important. However, these activities remain important as the availability of the medicine of acquired quality at an affordable price is a prerequisite for any pharmaceutical। फार्मास्यूटिकल केयर के लिए ज़रूरी है कि जो दवाएं खरीदें, फॉर्मुलरी बनाएं हॉस्पिटल की, उसमें तमाम लोगों को साथ लें और उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक, क्वालिटी होनी चाहिए ड्रग्स की, थर्ड क्लास ड्रग ना खरीदें। दूसरी बात, प्राइस अफोर्डेबल हो पेशेंट के लिए।
For official recognition and reimbursement for intervention in the healthcare system, pharmacies used need to comply with a wide range of the rules relating to healthcare. Means pharmacist has to follow the rule and regulation, how to supply the drug to the patient. Important aspects include terminology. We must understand the terminology, standards of doing work, documentation, how to do the documentation, letters कैसे बनते हैं, इनवाइसेस कैसे क्रिएट की जाती हैं, प्रिस्क्रिप्शन कैसे मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही हैज टू गिव एन अकाउंटेबिलिटी फॉर हिज वर्किंग. At the level of an institution such as a hospital, clinic, managed care organization or pharmacy, tool used for medicine selection include formularies as I have mentioned, standard treatment guidelines. ये किताब आती है, इसमें गाइडलाइंस होती हैं बहुत सारी बुक्स में, क्या एक ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती है, किस डोज में दी जाती है, किस फ्रीक्वेंसी से दी जाती है, कितने दिन तक दी जाती है. एंड मेडिसिन यूटिलाइजेशन रिव्यू. These tools are typically developed by Drug and Therapeutic Committee, एक कमेटी होती है, और by the National Essential Medicine Committee, एक कमेटी बना दी जाती है जिसमें वो डेवलप करके देते हैं. The development process is no longer confined to the development group, but involve professionals at all level. अब हर डिपार्टमेंट पे प्रोफेशनल्स होंगे, हर जगह फार्मेसिस्ट बैठा हुआ होगा, चाहे वो सेटेलाइट फार्मेसी हो कार्डियोलॉजी के सामने, चाहे वो फार्मेसी जो है किसी और जगह पे हो, कैंसर वार्ड के सामने हो, या न्यूक्लियर ड्रग्स हो जिसमें आइसोटोप वगैरह होते हैं वो हो, वहाँ पे एक क्वालिफाइड फार्मेसिस्ट बैठा हुआ होगा. These tools should be accepted by individual healthcare providers and should be implemented. At the same level, for example, at national, federal, state or district level, planning, managing, legislation, regulation and policies are the enable environment in which any healthcare system develops and operates. The system level also includes a standard of practice and mandate for the pharmacies that are managed at the national, federal, regional, state or district level. Depending on the country, national medicine policies have become an integral part of many countries' national health policy. So there is another thing to involve in this, that we make the standard practices and mandate for the pharmacists. इसके लिए हमारे पे नेशनल, फेडरल और रीजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कंट्री में हम ये नेशनल मेडिसिन पॉलिसीज को पहुंचाते हैं कि ये हमारे मुल्क की पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी, इसको आपने फॉलो करना है. At the international level, there are move to harmonize approach worldwide. अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या दुनिया में एक जैसा हो जाए, हार्मोनाइज कर दे इसको. ऐसा ना हो पाकिस्तान में हम किसी और स्टैंडर्ड से काम करें, अमेरिका में किसी और स्टैंडर्ड. रूल रेगुलेशन मौजूद है मगर हम फॉलो नहीं करते पाकिस्तान. एंड अप्रोप्रिएट दैट warrant greater attention in view of the global reach of pharmaceutical industry and pharmacy practice. At community and population level, pharmaceutical practice comprises the activities which support the other level, that is information, education and communication to provide public health, provision of the medicine information, research, dissemination of the new information, नई information आपने आगे बढ़ानी है, एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ. आपका काम ये भी है, आप अपने स्टाफ को ट्रेन करेंगे एज अ फार्मेसी. कंज्यूमर ग्रुप्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ सिस्टम रिसर्चर्स, इनके साथ भी आप काम करेंगे. हेल्थ प्रमोशन, ये आपका काम होगा. डिजीज प्रिवेंशन, ये आपका काम होगा. लाइफ स्टाइल मेडिकेशन और एक्टिविटी ऑफ एट कम्युनिटी लेवल दैट हैव अ पब्लिक हेल्थ फोकस. हमारे यहाँ का कम्युनिटी पे काम नहीं होता. अभी चंद कम्युनिटी फार्मेसीज खुली हैं, जैसे ड्रग मार्ट खुला था सबसे पहली, क्लिफ्टन पे कम्युनिटी फार्मेसी स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, और उसमें 2 फार्मेसिस्ट थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था. एक मेरी अपनी बेटी थी और दूसरे मेरे दामाद थे. इन लोगों ने स्टार्ट किया था कम्युनिटी फार्मेसी में, जो इंग्लैंड के पैटर्न को फॉलो किया था. अब दवागो भी आ गया है, वो भी कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर रहा है, ठीक है ना. और भी बहुत सारे ऐसे फार्मेसी, मेरी फार्मेसी आ गई है, मेरियन स्टॉक एनजीओ है यूके की, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. फार्मासिस्ट कैन ऑफर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन मोर conveniently than other groups.
since they are easily accessible and recognized as an expert in matter of health. अब pharmacist का पता चल गया है, तो pharmacist अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 72 सब्जेक्ट्स पढ़ता है पूरी फार्मेसी में और 5 साल की फार्मेसी करता है, या हो सकता है इससे ज़्यादा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 98 या 72 सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग पढ़ते हैं 5 साल के, और इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपको एक्सपर्ट इन मैटर ऑफ हेल्थ में शामिल किया जाता है. Pharmacists are a trusted source of information and advice on health and medicine. However, they cannot operate in isolation and must accept joint responsibility with other health professionals. तो आप दूसरों के साथ मिल के काम करेंगे, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपिस्ट सब आएंगे टू सर्व कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ गोल्स. हमारे ऑब्जेक्टिव गोल जो होंगे पॉलिसी में, उसको हम पकड़ेंगे. ठीक है जनाब, यहाँ तक तो हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, फार्मासिस्ट कैसे काम करता है. अब यहाँ पे थोड़ा सा वाकई डिसीजन मेकिंग, फैसले करने हैं, फार्माकोथेरेपी, डिसीजन मेकिंग, एक फार्मासिस्ट कैसे फैसले करता है. दीज द 6 स्टेप ऑन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग के हमारे जो है ना शेयर डिसीजन मेकिंग, जो शेयर डिसीजन यानी शेयर से मुराद है नर्सेज, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, सब के सब इसके साथ होंगे, तो वो जो है इसके अंदर अपना रोल अदा करेंगे. The 6th step of shared decision and simple language can help provide work with patient to make better decision. Invite the patient to participate. सबसे पहला काम है पेशेंट को इनवाइट करें तो वो पार्टिसिपेट करें. ठीक है, अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा कि पेशेंट फिर एग्रीमेंट पे आएगा. जब उससे आप उसके कंसेंट लेंगे तो he will be agree to come under your treatment. Often patient did not realize that there is more than one viable option for treatment. Patient को क्या पता कि एक से ज़्यादा तरीके हैं treatment के. By offering an invitation, you are letting them to know that they have a choices and their role and concern are an important part of the decision making process. मिसाल के तौर पे एक सर्जरी का पेशेंट आता है, उसके पास 2 चॉइसेस. क्या पेशेंट लेप्रोटोमी में जाना चाहते हैं, यानी पूरा पेट काट के उसका ऑपरेशन किया जाए, गॉल ब्लैडर स्टोन निकाले जाए, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जाते हैं कि होल सर्जरी, सुराख करके पेट में 3 उससे सर्जरी की जाए. तो डिसीजन उसके हैं. ऐसे ट्रीटमेंट में भी है डिसीजन कि क्या वो नेबुलाइजर लेना चाहता है या वो इनहेलर लेना चाहता है. तो चॉइसेस आप उसको देते हैं. फर्स्ट स्टेप है इनवाइट द पेशेंट टू पार्टिसिपेट. इसमें लैंग्वेज सैंपल ऑफ लैंग्वेज है. देयर इज अ डिसीजन टू मेक अबाउट योर ट्रीटमेंट फॉर टेस्टिंग. There is a decision to make about your treatment for testing, and I had like to make it with you. Knowing what's important to you will help us make a better decision. Or sometimes things in medicine are not as clear as most people think. Let's work together so we can come up with the decision that's right for you. ठीक है, पेशेंट के साथ क्या करते हैं आप, उसको बताते हैं there is a decision to make about your treatment. ठीक है, एंड आई हैड लाइक टू मेक इट विथ यू. आपके साथ में बैठ के फैसला करूंगा कि क्या दवा इस्तेमाल करें. नोइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू एंड विल हेल्प यू टू मेक अ बेटर. आपके लिए कौन सी दवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कितना जल्दी वो सही कर देंगी. समथिंग इन मेडिसिन आर नॉट क्लियर एज मोस्ट पीपल थिंक. बहुत सारे लोगों को मेडिसिन के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं होता. गर्म है, ठंडी है, बड़ी गोली है, छोटी गोली है, शरबत नहीं पीऊंगा, गोली नहीं खाऊंगा, इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, बहुत सारी चीजें. लेट्स वर्क टुगेदर सो वी कैन कम अप. ये आपने उसकी काउंसलिंग करनी. सेकेंड स्टेप है प्रेजेंट द ऑप्शन. बिफोर मेकिंग एनी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म डिसीजन मेक पेशेंट नीड्स टू नो ऑल द ऑप्शन अवेलेबल टू देम. अब पेशेंट से कहें कि देखें हमारे पास 3-4 ऑप्शन है. अगर हम एक एंटीबायोटिक है जिससे शुरू करते हैं तो उसको हमें 14 दिन देना पड़ता है. एक एंटीबायोटिक है तो वो 3 दिन में काम कर देगी. एक है जो 10 दिन में काम करेगी. तो अगर आप बताएं हमें, हमारे हिसाब से तीनों सही है. आप इसमें क्या चाहते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या देर से लेना चाहते हैं, इस डोज में जाएंगे उस डोज में. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इंजेक्शन की शक्ल में दवा दे दें तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या हम आपको जो है ना गोलियों की शक्ल में दे दें. तो तमाम चीज़ें उससे डिस्कस करेंगे. When not using a decision aid, here are some choices we can consider.
हियर आर योर ऑप्शंस, उसको कुछ ऑप्शंस देंगे, ठीक है ना, उसके सामने ऑप्शंस रखेंगे ट्रीटमेंट के। सैंपल लैंग्वेज क्या होगी? व्हेन यूजिंग अ डिसीजन एड, डिड यू हैव अ चांस टू रीड और वॉच द मटेरियल अबाउट योर ऑप्शन? आपने, हमने जो ऑप्शन दिया आपने वो पढ़ा कि हम क्या मटेरियल इस्तेमाल करेंगे आपके ट्रीटमेंट के लिए। विच ऑफ द ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू डिस्कस? कौन सा आपको ट्रीटमेंट पसंद है? हमने 3-4 ऑप्शन दिए, आप हमसे डिस्कस करना, आपने पढ़ा होगा यकीनन। आइए हम आपसे डिस्कस, लेट्स टेक अ फ्यू मिनट्स टू रिव्यू द ऑप्शन यू हैव। अब आपने जो ऑप्शन आपके हैं, आइए उसको रिव्यू करते हैं, उसके साथ बैठ कर रिव्यू करेंगे। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और बेनिफिट एंड रिस्क। देखिए दवाओं से फायदे जरूर होते हैं, किसी को इनकार नहीं है, मगर एंटीबायोटिक से डायरिया भी होता है, स्किन रैशेस भी होते हैं, ठीक है ना, नोजिया वॉमिटिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डायूरेसिस भी होती है, यूरिन रिटेंशन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। दवाएं देना इतना इतना आसान नहीं। इमोडियम जैसे हम यूज़ करते थे डायरिया के अंदर, इमोडियम ओपीआई डेरिवेटिव है। इमोडियम अगर हम देते हैं तो इंटेस्टाइन की पेरिस्टासिस रुक जाती है। इंटेस्टाइन की क्या होती है? पेरिस्टासिस रुक जाती है। और अगर पेरिस्टासिस रुक जाए तो क्या होगा? वहाँ पे टॉक्सिस जमा होंगे और पेशेंट को सेप्टिसीमिया में जा सकता है और डेथ हो सकती है पेशेंट की। इसलिए हम नार्कोटिक नार्कोटिक ड्रग्स डायरिया में नहीं यूज़ करते ज़्यादा। इमोडियम को यूज़ करके काफ़ी बच्चे मर चुके हैं उससे, बच्चों में डायरिया यूज़। गिव बैलेंस इंफॉर्मेशन, use number rather than words when you can. Without them, patients tend to overestimate the benefit. अब क्या करें? यूज नंबर्स। आप उसको नंबर यूज करके बताएं कि देखिए इस दवा से आप 25%, 25 गुना आप बेहतर हो जाएंगे, तो आपने नंबर यूज किए। विदाउट देम पेशेंट टेंड टू ओवर एस्टिमेट द बेनिफिट्स एंड अंडर एस्टिमेट द रिस्क एंड देर। आप ये बताएं, देखिए भाई 100 मरीज में से 10 मरीजों को इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये क्लिनिकल रिपोर्ट है इसकी, वो रिपोर्ट उसको बताइए कि हमारे पास 100 मरीज आए थे जिसमें 10 को डायरिया लग गया था इस दवा से, तो ये इसके चांसेस आपको भी हो सकते हैं। स्किन रैशेज हो सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू चेक इन विथ पेशेंट्स टू मेक श्योर दैट दे करेक्ट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल बेनिफिट एंड हार्म। ठीक है, उसके बेनिफिट्स और हार्म्स दोनों के दोनों बताएं। Provide information of benefit and risk, sample language. Let's go over the benefit and risk of the option you are considering. अब उसको बताइए 4 ऑप्शन है ट्रीटमेंट के, चारों में से क्या बेनिफिट और क्या रिस्क है। To check for understanding, you have seen a lot of number which can be confusing. Do you have any question? May I help you sort through them? आपने बहुत सारे नंबर देखे कि किसमें कितने परसेंटेज है साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स के, वो आपके साथ मैं शेयर करूँ, मैं देखूँ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको कंफर्टेबल करूँ उसमें, राइट है ना। इसके बाद, और आई वॉन्ट टू बी श्योर दैट आई विल एक्सप्लेन थिंग्स वेल। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपसे तो सही तरीके से समझा दी दवाएं, ठीक है। और प्लीज टेल मी व्हाट यू हर्ड और रोट डाउन अबाउट। आपने जो सुना है आप उसको जो है रिफ्रेजिंग कर सकते हैं, आप रिफ्रेज करवाइए उससे, वो भी खुद बोले। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट एंड रिस्क क्या है ये बताइए। हेल्प द पेशेंट evaluate the option based on their goal and concern. Patient may not be comfortable raising their personal goals and concern for treatment. वो कहता है जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सही होना है, दैट्स इट, मेरे कोई ऑब्जेक्टिव गोल्स नहीं, मेरे एक ही ऑब्जेक्टिव गोल्स है, मैं जल्दी सही होकर घर चला जाऊँ। By actively inquiring, you are giving them permission to speak. जब आप इंक्वायर करते हैं, जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उसको एनकरेजमेंट मिलती है, परमिशन मिलती है कि चाह रहे कि मैं बोलूं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू देम, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, पेशेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसका ट्रीटमेंट। वंस यू हैव एलिसिटेड दिस इंफॉर्मेशन, जब वो इंफॉर्मेशन आप ले लें, यू कैन हेल्प देम लुक एट देयर ऑप्शंस बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। अब पेशेंट की प्रेफरेंसेस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं। पेशेंट कहता है जी मुझे दिन में 3 दफा फिजियोथेरेपी चाहिए, आप ये ऑप्शन नोट करें। वो कहता है जी मेडिसिन मैं खुद नहीं खा सकता, मुझे बेड पे आके कोई नर्स दे और मेरे मुंह में गोली रखे और पानी पिलाए, ये आप नोट करें। वो कहते हैं ऐसी दवा हो जो भाई मुझे रात के 2 बजे उठा के डोज ना देना। तो आते हैं आपके जो लोग होते हैं हॉस्पिटल के, वो आके 2 बजे रात को कहते हैं बेबी उठो ये गोली खा लो, तो भाई ऐसा ना हो।
ठीक है, तो मीन्स यू आर गिविंग चॉइसेस टू देम एंड वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, एंड आउट ऑफ दोज ऑप्शन सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। ये आप अब क्योंकि आप यू आर कमिंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ द फार्मेसी, थ्योरी आपके खत्म हो गई, 4 सेमेस्टर आपके हो गए हैं, 5वां सेमेस्टर आपके शुरू होगा, यू विल बी कंप्लीट फार्मासिस्ट एंड नाउ यू हैव टू बी रेडी फॉर योर activities in the market or in institution, how to handle the patient, how to adjust yourself, how to take the decision in your hospital। ये फार्माकोथेरेपी का प्लान है पूरा कि आपने क्या करना है। अगर फार्मासिस्ट को यही नहीं पता उसे क्या करना है, वो आप लोग कोट पहन के जाके खड़े हो जाएंगे, सिर्फ डॉक्टरों के दुम के पीछे दौड़ते रहेंगे वार्ड के अंदर, इससे काम नहीं चलेगा, वो जमाना गया। आज फार्मासिस्ट की नॉलेज इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि डॉक्टर्स को भी यकीन हो जाए कि कोई इंफॉर्मेशन लेनी तो फार्मासिस्ट से ले अबाउट द ड्रग्स एंड थेरेपी। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। आपने अपनी सिर्फ ड्रग्स को नहीं देखना है, बल्कि यू हैव टू सी द डिजीजेज ऑल्सो, डिजीज के ट्रीटमेंट पढ़िए, और फिर उसके कौन कौन से उस डिजीज में टेस्ट होते हैं वो पढ़िए, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है वो पढ़िए, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और आपको हर बीमारी में एक से ज़्यादा चॉइसेस आपके पास चाहिए। मेरे पास पेशेंट आते हैं, एज अ फिजिशियन अगर मैं प्रैक्टिस करता था, अभी भी आते पेशेंट में करता हूँ प्रैक्टिस, कहीं बैठा हुआ नहीं हूँ, मगर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट घर पे भी आते हैं और दूसरी जगहों पे मिलते हैं, तो मैं उनको ऑप्शन, जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ब्रेक दे रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। यस। सॉरी, मैंने थोड़ा सा कोई था बाहर तो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट हम कर रहे थे अभी, हेल्प द पेशेंट एवेलुएट द ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर गोल्स एंड कंसर्न। पेशेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं और उसको किससे कंसर्न है। उसको कंसर्न है कि मेरा ट्रीटमेंट ठीक हो और मैं जल्दी घर चला जाऊँ, ये गोल्स एंड कंसर्न है उसके, ठीक है, जल्दी जाऊँ, और कंसर्न ये है कि मेरा ट्रीटमेंट ठीक तरीके से
क्योंकि आपने उसको रिस्क एंड बेनिफिट दोनों बता दिए हैं. यू हैव मेंशन्ड अबाउट द risk and benefit of the treatment. So he is worried about that, and you have to convince him and provide information. The patient may not be comfortable raising their personal goals and concerns for treatment. By activity inquiring, you are giving them permission to speak. जब आप अपनी एक्टिविटीज बनाएंगे तो फिर आप वो बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो. वंस यू हैव एलिसिटेड दिस इंफॉर्मेशन, जब आप उसको इंफॉर्मेशन दे दी बता दी, यू कैन हेल्प देम लुक एट देयर ऑप्शंस बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस. अब पेशेंट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है ट्रीटमेंट का, क्योंकि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आपने उसको देने होंगे. और आप क्योंकि फार्माकोथेरेपी प्लान पे बात कर रहे हैं तो मीन्स यू हैव टू टॉक ऑन ड्रग्स, मेडिसिन, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके बेनिफिट और रिस्क रेशो क्या होगा, ये तमाम चीज़ उसको पहले से बता दें. ऐसा ना हो एक दवाई खाई और उसको जो है ना टैकिकार्डिया हो गया और वो परेशान बैठा है, यार मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे क्या दे दी दवाई. उसको बताएं इससे टैकिकार्डिया होता है. टॉर्डस दी पॉन्टस आपने पढ़ा होगा. अगर आप एंटी फंगल के साथ मैक्रोलाइड देते हैं तो उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, टैकिकार्डिया में से यहाँ तक कि डेथ हो जाती है. तो आपने बताने कि अगर तुम्हें टैकिकार्डिया हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म अस, देन वी विल गिव यू अ काउंटर मेडिसिन. ठीक है ना, हम उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे. अब पेशेंट कहेगा पता नहीं टैकिकार्डिया हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है, उसको बताया नहीं आपने इससे ये हो सकता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. हेल्प द पेशेंट evaluate ऑप्शन बेस्ड ऑन देयर गोल्स एंड कंसर्न. सैंपल लैंग्वेज क्या है इसकी? जस्ट एज पीपल आर डिफरेंट, नो वन डिसीजन इज राइट फॉर एवरीवन. ठीक है, जस्ट एज अ पीपल आर डिफरेंट, जैसे लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मरीज आते हैं, डिफरेंट पेशेंट्स आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. एवरी पेशेंट इज गॉट डिफरेंट नेचर, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, डिफरेंट पर्सनैलिटी. नो वन डिसीजन इज राइट फॉर एवरीवन. एक आपने फैसला एक मरीज के साथ जो लिया वो सबके साथ वो फैसला नहीं ले गया. एज यू थिंक अबाउट योर ऑप्शन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, आपके ऑप्शन में आप क्या समझते हैं. उसने 5 ऑप्शन में से अगर तीसरा उठा लिया है तो क्या वो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि आप फार्मेसिस्ट है, ही इज नॉट अ फार्मेसिस्ट. वो तो एक सत्ताई अंदाज में कंसर्न है, उसका गोल्स एंड कंसर्न है, उसके गोल्स एंड कंसर्न को जरूर कंसिडर कीजिए. बट गिव हिम and convince him that this option which you have selected is not good. This second option is uh, is a very nice option and it will help you out for in your treatment and improvement. People have different goals and concerns. As you think about your option, what's important to you. For example, some people while other people, कुछ लोग कुछ डिसीजन आपका एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. तो आपने जो ऑप्शंस प्रोवाइड किए 5-6, इसमें से पेशेंट तो जरूर सेलेक्ट करेगा, बट यू आर एन एक्सपर्ट. अगर वो गलत सेलेक्ट करता है तो उसको सही सिलेक्शन पे लेके आएंगे आप, समझे ना. तो ये बहुत जरूरी है. जब हम कुछ एरियाज है मेरे स्पेशलिटी के, उसमें जब हम बात करते हैं कि एक दवा का जो इमेज है पेशेंट के दिमाग में, वो कहता है जी मुझे नोविडेट इस्तेमाल करनी है, बहुत अच्छी एंटीबॉडी, मेरी खाला ने इस्तेमाल की थी. ये उसका इमेज बना हुआ है, इमेज उसके परसेप्शन पे बनता है, और परसेप्शन नॉलेज, बिलीव और एक्सपीरियंस पे बनता है. तो हर एक का नॉलेज, बिलीव और एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. तो अगर एक इमेज डेवलप हो गया है उस ब्रांड का उसके माइंड में, तो आपने उस ब्रांड के माइंड के इमेज पे डिसीजन नहीं लेना है. फिर किस पे आप डिसीजन लेंगे? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ योर ड्रग, यानी ड्रग के फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं, आप उस पर डिसीजन लेंगे. उस पेशेंट के इमेज के ऊपर या परसेप्शन पे डिसीजन नहीं लेंगे. उसके परसेप्शन में एक चीज अच्छी है, मगर आपकी जो 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 दवाई है उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसको बतानी है कि दवाई क्यों अच्छी है. तो ये आपने करना होगा. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटेट डिलिब्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग. सैंपल लैंग्वेज. Consider what we have discussed. Do you have a preference about the direction we take? अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है पेशेंट से पूछें तो आप हमें बता दें, हम सोचेंगे कि आपकी प्रेफरेंस को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते. यू हैव अ टाइम टू थिंग्स ओवर. आपके पास टाइम है, आप सोचे और सोचे. अभी हम क्या कर रहे थे कि पहला वाला जो पॉइंट था, पार्टिसिपेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना मैंने ये बात की सब पार्टिसिपेशन की. अगर पेशेंट की ना हो, यहाँ तो होता है ये डॉक्टर मुंह खोलो, हाँ प्रेस्क्रिप्शन लिखा, चलो आप बाहर जाओ.
ना पेशेंट से पूछा गले में दर्द है, ना पूछा है पेट में दर्द है, ना पूछा है पीठ में दर्द है, यही फार्मासिस्ट है, अच्छा ये प्रिस्क्रिप्शन है, जाओ भाई दवाई बनाओ, इनको तो बढ़ा दो। अब वो जमाना गया, अब वो जमाना नहीं है। फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यू हैव अ टाइम टू थिंक्स ओवर, पेशेंट को कह रहे हैं आप। डू यू वांट टू थिंक अबाउट दिस डिसीजन विद एनीवन एल्स, अगर तुम शेयर करना चाहते हो अपने अब्बा के साथ, अम्मा के साथ, भाई के साथ, दोस्त के साथ, कोई तुम्हारा दोस्त फार्मासिस्ट तो उसको बुला लो, मैं उसको समझा देता हूँ। समवन हु माइट बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, हो सकता है कुछ लोग इस मेरे डिसीजन से, आपके ऑप्शन से कोई लोग जो है ना अफेक्टेड हो जाए कि यार काश ये फैसला हम नहीं करते। समवन हु माइट हेल्प यू सॉर्ट थिंग्स आउट, कुछ आप हो सकता है आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो आ जाए, आपका बेटा बेनजीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, फार्मासिस्ट है, फोर्थ ईयर में, वो आके हो सकता है आपकी बुला ले उसको जरा सा, मैं उससे डिस्कस कर लूँ। आप क्योंकि एक नॉर्मल पेशेंट है, आपकी वालदा, आपके भाई बहन कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उसमें ये फार्मासिस्ट का काम है कि जो उसके लवायकीन है उसमें से अगर वो चाहते हैं कि किसी को बुलाएं, हाँ वो माँ कहते हैं हाँ जी मेरा बेटा जो है बेनजीर में पढ़ रहा है फोर्थ ईयर में, तो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत अच्छा बच्चा है, उससे आप डिस्कस करें। वो क्यों, मैं तो खैर पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं ये चीज़ें नहीं जानती हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल नई जगह, नई चीज़ें हैं। इज देयर एनी वन इंफॉर्मेशन यूज, इज देयर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू नीड, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए? व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट डिसीजन डिसाइडिंग, आपको डिसीजन लेने में कहाँ मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्यों आप ट्रीटमेंट में एग्री नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूँ, घर से बुलाइए, हम बैठ के सॉल्व करें। फ्रॉम व्हाट आई हर्ड यू से, here's what I have suggested, आपने जो बोला उसमें मैंने ये सजेशन दी है आपको। हाउ डज दैट साउंड टू यू, अब आपको कैसा लगा मेरी सजेशन, आपने जो कहा वो मैंने सुना, ठीक है, और उस पर मैंने आपको सजेशन दी, क्या आपको मेरी सजेशन पसंद आई या नहीं पसंद?